భూదానోద్యమాన్ని గుర్తు చేస్తూ భూదాన్ పోచంపల్లి నుంచి మీనాక్షి నటరాజన్ చేపట్టిన సర్వోదయ సంకల్ప యాత్ర అభినందనీయమన్న టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి. చరిత్ర గల కార్యక్రమాన్ని మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మధ్యప్రదేశ్లో చిన్న వయసులోనే ఎంపీగా పోటీ చేసి ఎంపీగా ఉండడము, ఇప్పుడు వారి వయసు 48 సంవత్సరాలు, 48 ఇయర్స్. అంటే ఇంకో 5 ఏళ్ల కిందటనే, అంటే దాదాపు 40 ఏళ్ళ కిందనే 40 ఇయర్స్కి ఎంపీ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఈ పాదయాత్ర యొక్క సంకల్పము, కాంగ్రెస్ యొక్క భావాలు గత గాంధీజీ గారి నుంచి మొదలుకుంటే, నెహ్రూ నుంచి మొదలుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క భావాలు ఆ కాలంలో ఎట్లా ఉండే, वो जमाने में कैसा था, गांधी जी का और नेहरू जी का जो कांग्रेस का सिस्टम क्या था, कैसा था. आज का पॉलिटिक्स जैसा है वैसा नहीं था वो जमाना. खुद का दे के दूसरों को बचाने का सिस्टम था ఆ రోజులలో అట్లుండే. అందులో ఈ యొక్క భూదాన్ పోచంపల్లి ఏదైతే ఉందో అక్కడ ముందుగా ఈ నటరాజన్ గారు అక్కడి నుంచి ఎందుకు మొదలు పెట్టారంటే ఒక చరిత్ర, పోచంపల్లి భూదాన్ పోచంపల్లికి ఒక చరిత్ర. ఏం చరిత్ర అంటే ఆ రోజు గాంధీజీ గారి యొక్క భావాలను, ఆనాటి కాంగ్రెస్ యొక్క భావాలను ఈ యొక్క పేదవారికి, భూమి లేనోళ్లకు భూమి ఇచ్చే భూమి లేనోళ్లకు భూమి, వాళ్ళకు పంట పండించుకొని బతకడానికి ఆ రోజు గాంధీజీ గారి యొక్క ఆశయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి అనుసంధానంలోనే మరి ఆ రోజున పి రామచంద్రారెడ్డి గారు అని వారు దాదాపు ఒక 100 ఎకరాల నుంచి మొదలుకొని తర్వాత 900 ఎకరాలు ఇంత భూమిని వారు పేదలకు ఇచ్చినట్టు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే కాదు, 7th నిజాం కూడా ఫస్ట్ మొదలుపెట్టింది రామచంద్రారెడ్డి గారు పోచంపల్లిలో. దాని తర్వాత 7th నిజాం కూడా మరి దాదాపు 14,000 ఏకర్స్, 14,000 7th నిజాం. ఆయన కూడా ఈ భూదానం సంబంధించి ప్రక్రియలో భాగస్వామి, ఆయన కూడా భూమిని పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లా అది దినదినంగా ఈ భూదాన్ పోచాన్పల్లిలో భూదానము, భూమి ఉన్నవాడు భూమి లేనోనికి బ్రతకడానికి పేదవాడికి ఇచ్చి వాళ్ళని వ్యవసాయం చేసుకొని బతకడానికి ఇచ్చిన యొక్క చరిత్ర ఆ గ్రామం. అందుకే మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మరి వారు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని, ఇదంతా చరిత్ర మర్చిపోయింది. आज का जमाना भूल गया, आज का जमाने को मैसेज भी नहीं है. थोड़ा जो पढ़ता है वो लोगों को मालूम, आज का जनरेशन को नहीं मालूम. इప్పుడున్న जनरेशन తెలియదు, इప్పుడున్న सॉफ्टवेयर की తెలియదు. आज का दिन जो सॉफ्टवेयर है, बच्चे हैं आज अच्छा जिंदगी सुकून से जी रहे हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं मालूम. मगर नटराजन एक्स-एमपी कांग्रेस के आज एक पादयात्रा कहाँ से, भूदान, ఇది యాదగిరిగుట్ట భూదానం అంటే అక్కడి నుంచి పోచంపల్లి నుంచి మరి పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది, సేవాగ్రామ్ వార్దా అంటే గాంధీజీ గారి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్తుంది. అంటే 600 కిలోమీటర్లు, దాదాపు 600. దానికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన డైరెక్షన్లో వారేమంటే చాలా మంది పెద్దలు, వయసు ఒకరు 65-70 ఏజ్ ఉన్నలు కూడా చాలా మంది, నటరాజ్ గారు మరి అందరు కూడా వహాతో हमारे తిరంగా జెండా బడా చూడండి, గమనించండి ప్రజలారా, ఇది గమనించండి. ఆ రోజు గాంధీజీ గారి యొక్క ఆశయాలను, భూములు దానదత్తం చేసిన చరిత్ర ఈనాటి जनरेशन, इప్పుడున్న जनरेशन, आज का जो बच्चे हैं, आज का जो जिंदगी अच्छा सुकून से जी रहे हैं,
पुरानों को लोगों को याद करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है नटराजन का। आज हमारे ये कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट में जो कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत लोग वहां से शुरू से भूटान से वहां से लेके यहाँ तक ये स्टेट तक तेलंगाना स्टेट तक हर एक कांग्रेस पार्टी के लीडर नायक सब जो ने उनके इधर का उधर अरेंजमेंट करते हुए वहां तक लेके जाने के लिए हमको डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक अच्छा प्रोग्राम नटराजन जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ये आइडिया नहीं आया, आपको आइडिया आ गया। आपको कौन आइडिया दिया हमको नहीं मालूम। एक अच्छा कार्यक्रम का आपको आइडिया दिए, उसके लिए हमारा एक धन्यवाद आपको। अब नटराजन जी बात करेंगे। उनका मैसेज हर एक जने ये वजह क्या है चलने का, वो मैसेज ये मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हर ये स्टेट को या देश को बताने का ये वजह क्या है। भूदान पोचानपल्ली से यहाँ के पाद यात्रा वारदा के गांधी जी का आश्रम का जो पाद यात्रा है नटराजन जी जो कर रहे हैं, उसका मैसेज सब लोग सुनने के लिए आप अच्छा कोऑपरेट करना बोल के मेरे पास चलते हैं मैडम जी। वो एक बार पोचमपल्ली आए और पोचमपल्ली की ग्राम सभा में करीब 80 दलित परिवारों ने खड़े होकर अपनी भूमिहीनता का जिक्र किया। तब वहां पर विनोबा जी तो सोच ही रहे थे कि इसका क्या हल होगा। इतने में रामचंद्र रेड्डी जी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने 80 एकड़ जमीन दान देता हूं, ये इन दलितों परिवारों में बांट दिया जाए। उसके बाद विनोबा जी को ये आइडिया आया कि हमें पूरे देश में भूदान, उसी समय ये शब्द निकला और ये भूदान का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इसीलिए आज आपके यहाँ पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली कहते हैं। फिर पूरे देश में 13 साल तक विनोबा जी पैदल गए हैं और 47 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दान में इस तरह से लोगों से प्राप्त करके दी है। हम लोग जानते हैं कि समता को लाने के लिए बहुत सारे सशस्त्र प्रयास भी हुए हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप और अन्य उग्र वामपंथियों के माध्यम से, लेकिन अहिंसात्मक समाज निर्मिति और अहिंसात्मक तरीके से हृदय परिवर्तन करते हुए समाज में समता लाने का प्रयास ये विनोबा जी का अनूठा प्रयास था। और ये सर्वोदय शब्द कहाँ से आया ये भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। सर्वोदय शब्द जब महात्मा गांधी इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे तो 6 महीने करीब करीब वो स्टीमर में थे, तब उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट नामक जो निबंध था वो पढ़ा। उस लेख में ये मेंशन था कि जो कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, उसमें और जो बौद्धिक श्रम करते हैं यानी कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इनके बीच में कोई आय का अंतर नहीं होना चाहिए। उसी को उन्होंने अनटू द लास्ट कहा। जब उसका तर्जुमा किया तो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द निकाला, यानी कि सबका एक साथ आगे बढ़ने का, उनको सबको मौका देना। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जगह जगह पर तेलंगाना में जहाँ पर पहले टेनेंसी के अधिकार भी मान्यता उसकी थी, वो एक बैंकेबल राइट भी था, आज धीरे धीरे जो पट्टों पर लोगों को आधी सदी पहले अधिकार दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, आज उनके अधिकार धरनी पोर्टल में निकाल दिए जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि लगातार लोग अपने ही जमीन से बेदखल होते जा रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि विकास की परियोजनाओं के नाम पर जो जमीनें अधिग्रहित होती है वो बहुत ही सस्ते दामों में होती है और हजारों एकड़ जमीन, मतलब एक राजमार्ग बन रहा है तो उसके आसपास भी कई 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित होती है। जाहिर है उसमें सड़क नहीं निर्माण होने वाला है, वो फिर बड़े मॉल बनाने के लिए या फिर बिल्डर्स को, उन लोगों को महंगे दामों में बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठता है कि क्या उस पर भी कोई ना कोई सीलिंग आना चाहिए कि एक ट्रस्ट या एक शैक्षणिक संस्था या एक परियोजना के लिए आखिर कितनी जमीन अधिग्रहित हो सकती है। राहुल जी ने 2011-12 में भट्टा परसोल के किसानों की लड़ाई लड़ते हुए भूमि अधिग्रहण का कानून, लार का कानून 2013-14 में पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें कि ग्राम सभा की सहमति के बिना अधिग्रहण नहीं हो सकता था। लेकिन अब वो सहमति मशवरा में बदल गया है
और वो सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई। और हम देखते हैं कि आदिवासी और दलित, ये जो सबसे ज़्यादा मार्जिन्स में जो लोग हैं और जो किसान हैं, रैयत हैं, वो लगातार अपनी ज़मीनों से बेदखल हो रहे हैं और वो सारे के सारे ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। और वो राजनीति जो भूमाफिया के द्वारा संचालित होगी, उस राजनीति में भूमिहीनों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। इसीलिए एक वैकल्पिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था खड़ा करना जरूरी है। इट इज नाउ नो मोर अबाउट ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू बिल्ड an alternative socio-political economic structure. Otherwise, the democracy would look in stark contrast to the constitutional ethos of the country as enshrined in the constitution of this country. तो इसीलिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। जैसा विजय जी ने कहा, ये सचमुच एक अभ्यास यात्रा है और सभी नए लोगों से बातचीत करने का, सर्वोदय के लिए एक विचार वातावरण तैयार करने का ये एक काम है। और ये यात्रा के बाद यहाँ समाप्त नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अलग अलग, ये तो क्योंकि बिगिनिंग है 75th ईयर का, वी वुड बी रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर स्टेट्स। और तेलंगाना में भी हम वापस लौट कर आएंगे। हमारा इरादा है कि हर जिले में धरनी में जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिनका भी रिकॉर्ड्स से नाम हटा है, उनकी एक जनसुनवाई करें और इन मुद्दों के जरिए वापस जो भूमि सुधार का नया आंदोलन होना चाहिए, एक नया अभियान खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से सारे नेचुरल और नेशनल एसेट्स पर आज जो सुपर रिच 142 लोगों का कब्जा है, जो डिस्पैरिटी है, इतनी स्टार्क डिस्पैरिटी है, उसके खिलाफ हम लोग प्रयास करें। यही हमारा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.